Hello students, welcome back to the next lecture of chemistry for class 10, and we were doing the chapter acid, bases and salts. And in the previous lecture we have studied about the acids and what are acids and what are their classification, and in classification of acids we have learned about the different ways to classify the acids. First one is on the basis of sources from which they are obtained. Second one is on the ability of to dissociate in aqueous solution. Third one is on their concentration in water, and there are 6 types we did about acids. First one was organic acids, second one is inorganic based on the sources, third one is strong acids, and fourth one is weak acids. These both are based on the dissociation ability of the acids in aqueous solution. And the fifth one is concentrated, and sixth one is dilute acids. This one is based on their concentration in water, right? Next question we were doing in the previous lecture was, why should dilution of concentrated acid be done with the utmost care? Because we know that the dilution of a concentrated acid is always an exothermic process. So why it should be done with the utmost care? And we will do it now only. I will explain it to you, experiment, or we can say that activity, to show you that the dilution of concentrated acid is always an exothermic process. That is why it should be done with utmost care. Okay, and one thing more, in the dilution process it is advisable that we should add water to the acid, not acid to the water, right? It's wrong. We always add acid to the water with constant stirring, बट नॉट वाटर टू द एसिड्स. बेटा जब हमने डाइल्यूशन करनी है एसिड की तो हमें हमेशा याद रखना है ये कि बीकर में वाटर लेना है और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप कंसनट्रेटेड एसिड डालना है जिसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं. ठीक है, तो वो कैसे करना है? नाउ इट इज़ डन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट वी हैव टू टेक about 10 ml of water in a beaker. In the second step, we have to add few drops of concentrated, suppose we have sulfuric acid or we have HCl, anything we have, to it, to the water means, with constant stirring. साथ के साथ हमें वाटर को स्टिर भी करना है, घुमाते रहना है साथ में. क्यों बताऊंगा बाद में. एंड देन टच द बीकर फ्रॉम बिलो and note the observations and observe the change in temperature and record the observations, we can say. And what will be the observation? You will note that when concentrated sulfuric acid is added to water, the beaker becomes hot, and this indicates that the dilution process is exothermic in nature. तो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो आएगी वो ये आएगी कि जो डाइल्यूशन ऑफ एसिड है it is always an exothermic process, because there is an evolution of heat occurs and the beaker becomes hot. Okay, and one thing more please, the following precautions you should keep in your mind and you should be followed while doing this experiment. So हमने अभी प्रूव कर दिया कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक इन नेचर, तो वो ऐसे पता लग जाएगा हमें. तो प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन कराने से पहले आपको बता दूं कि हम उसको कांस्टेंट स्टीयरिंग क्यों कर रहे हैं. क्योंकि बेटा एक वर्ड होता है स्पेसिफिक हीट. वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है कि वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है. उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. इसलिए हमने क्या करना है, हमेशा एसिड में पानी में एसिड डालना है, एसिड में पानी नहीं डालना. क्योंकि जब हम पानी में एसिड डालेंगे तो उसको कांस्टेंट स्टिर करेंगे तो जो भी हीट इवॉल्व होगी वो वाटर में ही क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी. ठीक है, वाटर के अंदर ही कंज्यूम हो जाएगी, वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी. और हीट की वजह से क्या होता है, कई बार
एसिड के फ्यूम बन जाते हैं, फ्यूम्स, वेपराइज हो जाता है एसिड। अगर एसिड वेपराइज हो गया तो उसके फ्यूम्स जाएंगे, और वो जो फ्यूम्स है वो कहीं पे भी हमारी लैब के सरफेस पे, हमारी आंखों में, हमारे फेस पे, कहीं पे भी जा सकते हैं। इसलिए हम उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे ताकि वो फ्यूम्स पैदा ना हो, और इसलिए हम पानी में ही एसिड डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, सीधा नहीं डाल देना। अगर आप सीधा ऐसे ही सारा एसिड पानी में डाल दोगे तो बहुत सारे हीट निकलेगी और बहुत सारे फ्यूम्स बनेंगे, तो इट विल लीड टू अ मेजर एक्सीडेंट in the lab. So precautions that you should follow. First one is protective gloves should be worn. You should wear protective gloves. Second precaution, the concentrated acid should be added to water so that heat evolved may be absorbed by the large amount of water. मतलब acid should be added to water, not the water to acid. Why? ताकि जो heat evolve होगी वो water absorb कर लेगा. And if the water is added to the acid, अगर हम reverse करें इसको, if the water is added to the acid, the heat produced may not be absorbed, and the water added may convert into steam, due to which acid may splash and causing acid burns. तो acid burns हो सकते हैं हमारी स्किन पे, हमारी आंखों में जा सकता है, हमारे नोज़ में जा सकता है, हमारे लंग्स तक पहुंच सकता है वो, तो इसलिए कोई ना कोई हमें ऑब्वियसली कोई डैमेज करेगा। इसलिए बेटर है कि हम पानी में एसिड डालें, नॉट वाटर टू द एसिड। ओके, एंड द ग्लास कंटेनर ब्रेक भी हो सकता है जिसमें अगर हम एसिड में पानी डालेंगे तो, क्योंकि वो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी एंड द ग्लास में ब्रेक। सो दिस प्रिकॉशन यू शुड कीप इन माइंड। एंड एसिड को पानी में डालना है, पानी को एसिड में नहीं डालना। पता लग गया आपको क्यों? क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है, और अगर हम एसिड को पानी में डालेंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगी तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट या उसके वेपर्स नहीं बनेंगे एसिड के जो डैमेज कॉज कर सकेंगे। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड, दैट व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? सभी एसिड्स के पास क्या चीज़ कॉमन है? कोई एक चीज़ कॉमन? सिंपल, दे हैव ऑल हैव टेंडेंसी टू लूज या टू प्रोड्यूस, टू लूज तो बोलेंगे नहीं, टू प्रोड्यूस ही बोलेंगे, H पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशन मतलब इन वाटर। So this is common in all acids. For example बता रहा हूँ, we have HCl. If we will add it in water, it will give us H positive, Cl negative. H positive मिल रहा है. If we have sulfuric acid, it will give us 2H positive, plus SO4 2 negative. If we have HNO3, it will give again H positive and NO3 negative. Right, if we have CH3COOH, that is acetic acid, which is a weak acid, which is considered as a weak acid, and it will give us also acidic H positive ions as follows. Right, तो ये याद रखना। ओके, तो ये ऑर्गेनिक एसिड है ना, मैंने बताया था ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स बिकॉज दे विल नॉट completely dissociate into ions in the aqueous solution. ये मैंने previous lecture में आपको बताया था, you should please learn from there only about the acids. This is all about acids. Physically we have done. Now we will learn something about bases. As we know that bases are the substances which are bitter in taste, right? But according to Arrhenius, this is not the exact definition of base. According to Arrhenius, bases are the substances which dissociate in water to give, ये पार्ट याद रखना, टू गिव हाइड्रोक्सिल आयंस या फिर हाइड्रो ऑक्साइड आयंस या फिर हाइड्रोक्सिल आयंस, दैट इज OH नेगेटिव। ओके, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्साइड आयंस और
हाइड्रो ऑक्साइड आयंस लिखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको ये वर्ड याद करना ईजी होगा, बच्चों को होता है ये मोस्टली भूल जाते हैं, तो क्योंकि ये वर्ड ही 10th लेवल पे ज़्यादा यूज़ होता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। क्लियर? सो दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज बेसिस। फॉर एग्जाम्पल NaOH, it is one of the strongest bases, and in aqueous solutions it will give us Na positive and OH negative. Similarly, we have calcium hydroxide, it will give us Ca2 positive, 2 OH negative. Balance करने के लिए 2 लगा दिया, पर it will give us OH negative. So that is why they are all known as bases. And one thing more, all the bases are not soluble in water, but some bases are soluble in water, and a base which is soluble in water, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में completely soluble नहीं होता, it is sparingly soluble or very less soluble in water, but NaOH is completely soluble in water. KOH, potassium hydroxide, is also completely soluble in water. A base which is soluble in water is known as alkali. उन बेसिस को, जो बेसिस वाटर में completely soluble है बेटा, they are known as water soluble bases, or we can say that they are known as alkalis. For example, NaOH, KOH, ठीक है, both are known as alkalis. Clear? Okay. This is all about basis. Definition हो गई हमारे पास. And we have now यहाँ one thing more, all the alkalis are bases, but all the bases are not alkalis. याद रखना, ये लाइन याद रखना, all the alkalis are bases, क्योंकि सभी तो bases ही हैं, but सभी bases water soluble नहीं होते, इसलिए वो alkalis नहीं होते, are not alkalis. Clear? We can say this. Say it like this only. IS आएगा only. Sorry, IES नहीं आएगा, only IS, alkalis. Okay, one thing more also, the dissolution of alkalis in water is always exothermic. ये भी याद रखना कि वाटर में अगर एल्कलीज डालेंगे तो हमेशा पानी गर्म हो जाएगा, NaOH को पानी में डालोगे पानी गर्म हो जाएगा, बीकर को टच करोगे नीचे से तो वो गर्म होगा हमेशा. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिस, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस. But a classification of bases are classified according to only on the basis of their dissolution, their ability to dissociate in the aqueous solution. Only one type, only one way to classify the bases is, first one is strong base, second one is weak base. स्ट्रॉन्ग बेस बताइए हमें, जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, ठीक है, बट विच विल नॉट dissociate completely in their aqueous solution only, they are known as bases, weak bases. Okay, एग्जाम्पल है, जितने अल्कलीज हैं बेटा वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं, जितने बाकी जो बच गए वो सारे हैं वीक बेस हैं. मैं स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे हमारे पास है NaOH, KOH, ठीक है. बट वीक बेस की बात करूँ अगर मैं, तो वीक बेस हमारे पास है जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बता दूं ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हमारे इनो होता है ना, इनो जेलोसिल, जो एंटी एसिड्स हैं, हमारे एसिडिटी होती है जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसमें ये होता है मोस्टली. एंड नेक्स्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम कली करते हैं ना घर पे, फर्स्ट चैप्टर में किया था, इट इज़ नोन एज स्लेक्ड लाइम, और लाइम वाटर का फॉर्मूला भी यही होता है. हम कली करते हैं घर में, वाइट वॉशिंग करते हैं, तो वाइट वॉशिंग जो मटेरियल हम करते हैं तो दीवारों पर चिपकता है वो हमेशा ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बट ये दोनों वीक बेस हैं. ऐसा नहीं है होगा, फिर अगर आप ऐसा मत सोचो कि अगर एसिडिटी होगी तो जी सर बाज़ार से कली ला के पानी में डाल के पी जाओ, पॉइजनस होती है, ऐसा नहीं होता, ऐसे पी लोगे कि हम ठीक एसिडिटी ठीक हो जाएगी. ऐसा मत करना प्लीज़, बिकॉज ऑल द एसिड्स
as well as all the bases are not consumable or not edible for us. ठीक है. And now, what do all the bases have in common? They all release OH negative ions. पता है, तो हो जाएगा simple. Next one is properties of acids. Again, we will come to the acids. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली. अभी मैं आपको कराऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज. तो पहले फिजिकल थोड़ी थोड़ी बता दूं, रिकॉल करवा दूं आपको. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर, फर्स्ट वन इज एसिड्स हैव सो टेस्ट. कर लिया हमने, वी डिड इट. सेकेंड वन इज इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. थर्ड वन इज they are corrosive in nature. Fourth one is they are electrolytes, मतलब they dissociate into ions. Electrolytes मतलब they ionize in water. Those substances that ionize in water, याद रखना, they are known as electrolytes. बेसिस आर ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, जो पानी में डालने के बाद आयंस में ब्रेक होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. एंड वी हैव फिफ्थ, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मीडियम. ऑब्वियसली, क्योंकि एक्वस मीडियम में बेटा दे रिलीज आयंस एंड दे सोल्यूशन कैरी चार्ज, तो ऑब्वियसली करंट पास होगा. अगर चार्ज है तो करंट भी होगा. ठीक है, clear? So this is all about the physical properties of acids. Now let us मैं आपको एक एक्टिविटी भेजूंगा PDF फाइल में, जिसमें होगा, या आपकी बुक्स में दी होगी, एक्टिविटी टू प्रूव दैट एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना प्लीज़. या चलो करवाता हूँ यार, लीव इट. सुन लो. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एक्टिविटी 1, जिसमें प्रूव करेंगे हम for the conduction of electricity by acids. एसिडिक सॉल्यूशंस. ठीक है, तो क्या करना है, हमने एक एक्वस सॉल्यूशन लेना है, ग्लूकोज का, अल्कोहल का, एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का. यू हैव टू टेक 4 different beakers. First one is of glucose, second one is of alcohol, third one is for HCl, and fourth one is for sulfuric acid. Suppose, ठीक है, take 4 beakers. हमने beaker ले लिया A, beaker B, beaker C. We named it as this. Now we have to take a cork with 2 iron nails fixed on it and place it in 100 ml beaker. तो हमने क्या करना है, एक अलग से और बीकर लेना है, ध्यान रखना. इसमें एक कॉर्क रखा हुआ है, उसमें 2 आयरन नेल्स लगी हुई हैं. दोनों नेल्स को हमने ज्वाइन करना है बैटरी के साथ. प्लस क्या लगानी है, एक स्विच की लगानी है. आपने फिजिक्स में किया होगा कि हाउ टू ज्वाइन द सर्किट, पॉजिटिव नेगेटिव की, राइट. एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब ये खाली है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, स्विच ऑफ रखना है. ठीक है, तो अभी हमने इसमें बारी बारी पहले डालना है. फर्स्ट में डालना है अटेम्प्ट में ए सोल्यूशन ग्लूकोज, दूसरे में डालना है बी दैट इज़ अल्कोहल, तीसरे में डालना है सी HCl और चौथे बार में डालना है डी. अलग अलग बारी में अलग अलग सोल्यूशन डालने हैं. फर्स्ट सपोज हमने डाला ग्लूकोज डाल दिया, इसमें ग्लूकोज का सोल्यूशन डाल दिया पानी में डाल के इसको, तो उसमें स्विच ऑन किया तो देखा कि करंट जाता है इसमें कि नहीं जाता. तो व्हाट विल वी ऑब्जर्व, वी विल ऑब्जर्व, तो की लगा दी और यहाँ पे एक हम लगा देंगे सपोज बल्ब, तो बल्ब ग्लो करेगा तभी अगर करंट फ्लो करेगा. ठीक है, तो ग्लूकोज डालेंगे तो हम देखेंगे व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि नो करंट फ्लोज थ्रू, बल्ब ग्लो नहीं करेगा. जब अल्कोहल ग्लूकोज निकाल दिया बाहर, उसको वॉश करके प्रॉपरली, फिर इसमें क्या डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया, अल्कोहल सोल्यूशन डाल दिया, तो देखेंगे बल्ब ग्लो नहीं करेगा. एसिड डालेंगे, HCl सोल्यूशन डालेंगे इसमें, स्विच ऑन करेंगे तो देखेंगे बल्ब ग्लो करेगा. अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे फिर से इसमें, फिर स्विच ऑन करेंगे फिर भी करेंगे, बल्ब ग्लो करेगा. मतलब ग्लूकोज एंड अल्कोहल के केस में
इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन दोनों केस में, एसिड्स के केस में, द सोल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि एसिड्स डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और so we can say that the solutions of acids always conduct electricity. Clear? Okay, याद रखना प्लीज। हाँ, आप एक चीज़ और, इसका क्वेश्चन बन के आता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल में भी एच होता, हाइड्रोजन होता है, बट फिर वो एसिड्स क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा या उनको अगर हम पानी उनमें से करंट पास करेंगे तो पास नहीं होता, बट HCl या सल्फ्यूरिक एसिड में से हो जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, अल्कोहल होता है C2H5OH, याद रख लेना ये C2H5OH। दोनों को देखें, दोनों में HH है, बट दे विल नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्व सॉल्यूशन, दैट इज व्हाई दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्व सॉल्यूशंस। क्योंकि अगर पानी में डालेंगे तो ग्लूकोज ही रहेगा, ये टूटेगा नहीं, ये डिसोसिएट, ये आयनाइज नहीं होगा। दिस टू बोथ आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हैं, ठीक है। इन दोनों में ग्लूकोज आयनाइज या अल्कोहल आयनाइज नहीं होता, इसलिए हम बोलेंगे ये H पॉजिटिव आयंस नहीं देते, दैट्स व्हाई, एंड वी कैन से दैट दे आर नॉट एसिड्स, नीदर नॉर एसिड्स नॉर बेसिस, दे आर न्यूट्रल बोलेंगे इनको, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों एसिड्स हैं, क्योंकि H पॉजिटिव देते हैं दोनों, इसलिए इनमें से करंट पास होता है, क्योंकि ये आयंस बन जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स बोथ, बट दे आर नॉट। क्लियर? नाउ next we will do now the chemical properties of acids. The chemical properties of acids, what are the important chemical properties of acids? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, तो हम इंपॉर्टेंट ही करेंगे, सभी नहीं करेंगे, वैसे तो बहुत देर आर न्यूमरस और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज अवेलेबल, बट इन देयर सिलेबस देर आर I think fraction of them is in our syllabus, so we will do that only. First one is reaction of acids with metals. मेटल्स के साथ एसिड कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करते हैं? नाउ फर्स्ट वन इज एसिड्स रिएक्ट विद सम रिएक्टिव मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एक चीज़ और, शायद मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज करवाई थी मेटल्स की, तो वो याद है ना, सोडियम, पोटाशियम, प्लीज सेंड बैट, कैट, मंकीज एंड ज़ेब्रा इन द लार्ज हायर केजेस, मेक श्योर टू गेट पैडलॉक्ड, मैंने करवाया था वो। और जो एलिमेंट्स ऊपर पड़े हैं मैग्नीशियम के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर, वो सारे मोस्ट एक्टिव हैं, और सेंटर वाले मॉडरेटली एक्टिव होते हैं, और सबसे नीचे वाले क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव। मैं आपको दोबारा से यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि कौन कौन से मेटल हैं। एक होता है पोटाशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू ऑल, थोड़े से सिंबल हैं, ध्यान से देख लेना इसको बाद में। तो ये जो हैं ऊपर कैल्शियम के ऊपर तीनों हैं, दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव। कैल्शियम भी आता है रिएक्टिव में, ज़्यादा नहीं है, पर कैल्शियम से लेके लेड तक वो सारे क्या हैं? मॉडरेटली रिएक्टिव। और जो हाइड्रोजन के नीचे पड़े सारे, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो एसिड जो हैं इनके साथ अलग से बिहेव करते हैं, इनके साथ अलग से, ऐसे अलग अलग से बिहेव करेंगे अलग अलग कंपाउंड्स के साथ, बट जो एसिड्स हाँ ये होता है ऐसे। तो हम पहले करेंगे आज जो हमारे सिलेबस में वो रिएक्टिव मेटल्स के साथ ही है, मतलब अप टू रिएक्टिव या लीस्ट एक्टिव में। जो लीस्ट एक्टिव मेटल हैं उनके साथ एसिड बिहेव नहीं करता, एसिड एक्ट नहीं करता। एसिड्स डू नॉट रिएक्ट विद लीस्ट एक्टिव मेटल्स, दे रिएक्ट विद मोस्ट एक्टिव एंड moderately reactive. Now with some reactive metals they react to form salt and hydrogen gas. जैसे रिएक्शन लिख रहा हूँ सिंपल, एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, एसिड अगर एक्ट होगा एक्टिव मेटल, एक्टिव मतलब रिएक्टिव मेटल के साथ, तो क्या बनेगा? एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट मतलब नमक नहीं बनेगा, उस मैटर का सॉल्ट बनेगा, नमक नहीं। सॉल्ट हमेशा नमक नहीं होता, नमक हमेशा कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है, या टेबल सॉल्ट। सॉल्ट प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो कैसे होगा रिएक्शन? Acid, suppose we have an acid that is sulfuric acid, right? इसको लिखेंगे aqueous
स्टेट सिंबल लिख रहा हूँ साथ में। सपोज वी हैव अ मेटल जिंक, जिंक रिएक्ट विद दिस देन फॉर्म्स जिंक सल्फेट, एक्वस फॉर्म में बनेगा, प्लस हाइड्रोजन कौन सी बनेगी, गैस फॉर्म में, एरो डाल रहा हूँ तो गैस फॉर्म में बनेगी। ठीक है, क्लियर। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और याद रखना जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर पड़ा है, तो वही मेटल्स रिएक्ट होंगे एसिड के साथ जो मेटल में से हाइड्रोजन गैस निकाल सकें बाहर, या हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकें, और वही मेटल रिप्लेस कर पाएंगे हाइड्रोजन को जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं। इसलिए नीचे वाले मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। ठीक है, एक्टिव मेटल जिंक, मतलब एक्टिव एंड मोलेटिल एक्टिव दोनों के साथ हम सारे लिख रहा हूँ मैं। जिंक हो गया, अगर यहाँ पे HCl होता एक्वस फॉर्म में तो जिंक ही होता, तो क्या बनता हमारे पास ZnCl2 बनता, बैलेंस करने के लिए 2 लिखते जहाँ पे एक्वस, ऊपर वाली पहले से बैलेंस थी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बन जाता। इफ वी हैव सपोज एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, ऐसे रिएक्शन है, सपोज में HCl ही है एक्वस फॉर्म में है, एल्यूमिनियम है सॉलिड फॉर्म में, तो आई विल गेट AlCl6, सॉरी AlCl3 बनता है वैसे तो 3, हाँ 6 वाला छोड़ दो, अभी मैं बाद में कर दूँगा। AlCl3 प्लस क्या बनता हमारे पास, हाइड्रोजन गैस बन जाती, ये बन जाता है एक्वस फॉर्म में। बैलेंस करने के लिए 3 है, 3 लगाऊंगा, पर यहाँ पे 6, 3 to 6 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं 6 लगा दूंगा, तो 6 क्लोरीन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हो गए दोनों, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, बैलेंस है। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ ऐसे रिएक्शन आ जाएंगे, तो पता लग गया हमें कोई भी मेटल जब रिएक्ट होता है एसिड के साथ, तो इट विल ऑलवेज रिलीज हाइड्रोजन गैस विद द फॉर्मेशन ऑफ सम सॉल्ट। और याद रखना, हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, पता है हमें हाइड्रोजन गैस को कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकली है। इफ़ वी विल ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द टेस्ट ट्यूब विच इज फ्रॉम विच द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, इट विल स्टार्ट बर्निंग विद पॉप साउंड अगेन। ठीक है ना, वो फिर से दोबारा से पॉप साउंड क्रिएट करके दोबारा से और विग्रसली बर्न करना स्टार्ट कर देगी। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन दैट वी डिड इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो, सो आई थिंक देयर इज नो नीड टू discuss it again. ठीक है, now next one is the properties of acid. In the properties, chemical properties of acid is second property, the reaction of acids with metal carbonates and bicarbonates and metal bicarbonates. कार्बोनेट पता है हमें CO3 होता है, बाइकार्बोनेट पता है हमें HCO3 होता है। ठीक है, तो सपोज वी हैव सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सॉलिड, एंड सपोज वी हैव NaHCO3 सॉलिड बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। मैंने करवाया था ये, चलो छोड़ो, नहीं किया तो नहीं आता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इफ़ वी विल ट्रीट दीज टू कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विद एसिड्स, then what we will get what, सोडियम रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ, क्या बन जाएगा NaCl, बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ेगा 2, एंड प्लस NaCl होगा एक्वस फॉर्म में, प्लस बनेगा वाटर लिक्विड फॉर्म में, प्लस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में। ठीक है, 3 चीज़ें बनेगी, CO2 वाटर एंड NaCl बनेगा। तो बैलेंस बाकी तो है आई थिंक, तो बस यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अभी हम बाइकार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट अगर डालेंगे एसिड में, मेटल बाइकार्बोनेट कोई भी, तो भी क्या बनेगा, मैं यहाँ पे, क्योंकि स्पेस मेरे पास फिर से वही स्पेस कम है मेरे पास, हर बार होती है, क्या करें, NaCl एक्वस बनेगा, बेटा इससे भी NaCl बन जाएगा, सेम बनेगा वाटर बनेगा लिक्विड फॉर्म में, प्लस बनेगा CO2 गैस फॉर्म में, और इसमें यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, और यहाँ पे 2 कुछ बैलेंस नहीं करने की जरूरत, क्योंकि Na1 है, Cl1 है, H 1 2 है, O 3 है, 2 और 1 3, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ये बैलेंस है। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज हाउ इट विल अकर। तो हमेशा CO2 गैस निकलेगी प्लस वाटर निकलेगा, और जो CO2 गैस निकलेगी उसको प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए वी हैव लाइम वाटर टेस्ट, पता है ना वो, हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस, पता है ना, बताता हूँ आपको मैं। जो CO2 गैस निकलेगी उसको चेक करने के लिए वी विल पास इट थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर होता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में,
इससे बनेगा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में या पीपीटी बनेंगे इसके, इट विल गिव मिल्की कलर, प्लस क्या बनेगा वाटर, तो इट विल टर्न CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसके पीपीटी बनेंगे, डाउनवर्ड एरो आएगा। और अगर एक चीज़ और, CO2 अगर हम एक्सेस में ले लें, ये तो है लिमिटेड अमाउंट में जितनी निकलेगी, अगर हम बार बार CO2 और CO2 हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ज़्यादा पास कर दें, मतलब लाइम वाटर में CO2 ज़्यादा पास करवा दें, तो एक्सेस में लिखा हुआ एक्सेस, तो हमारे पास कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनेगा, HCA HCO3 होल ट्वाइस, तो कार्बोनेट नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बाई कार्बोनेट विच इज़ कलरलेस। तो इसका मतलब अगर थोड़ी बहुत CO2 डालोगे लाइम वाटर में तो मिल्की हो जाएगा, अगर उस मिल्की में बार बार और CO2 ऐड करते रहेंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि वो क्या बन जाएगा कलरलेस हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी विल चेक द डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस। ठीक है, इसका मतलब हमें एक्सेस CO2 मत नहीं पास करवानी, हमने थोड़ी सी CO2 पास करवानी है, तभी मिल्की कलर आएगा, तभी हम शो कर सकते हैं प्रैक्टिकली कि हाँ जी CO2 है। अगर वो ज़्यादा पास करवा दी हमने तो वो कलरलेस पहले था, बाद में भी कलरलेस ही रहेगा, तो वो फ़ायदा नहीं होगा, कुछ पता नहीं लगेगा हमें कि CO2 रिलीज हुई है या नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन रिलीज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है we have reaction with metal oxides, reaction of acids with metal oxides। तो याद रखना एक चीज और, एसिड when react with metal oxide always there is a formation of two things। अगर रिएक्ट होता है मेटल के साथ ओनली, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बट इट विल इफ इट विल रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल वी हैव अ एसिड HCl एंड अ मेटल ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, तो इट विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड दैट इज एक्वस प्लस क्या बचा पीछे वाटर H2O, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगेगा 2, दिस इज इन लिक्विड फॉर्म। ओके क्लियर, दिस इज हाउ इट हैपन्स विद मेटल ऑक्साइड, चाहे कॉपर ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कुछ भी है, जिंक ऑक्साइड है, एनी ऑक्साइड इज देयर, यू कैन टेक द यू कैन सी द एग्जाम्पल्स इन द नोटबुक्स फॉर द फर्दर नॉलेज। अगर हम HCl ले लें, मैं सारा कुछ एक्सेल के साथ कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड, दैट विल फॉर्म AlCl3 aqueous plus H2O liquid. To balance it, we will write 6 against HCl and 2 against AlCl3 and 3 against water। ठीक है, क्लियर। अगर मैं बात करूँ सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने बताया था अभी, अगर आप एग्जांपल ले सकते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे एक और नया ऑक्साइड ले लिया, जिंक ऑक्साइड ले लिया Zn, तो वी विल गेट सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट अगर HCl होता देन आई विल गेट जिंक क्लोराइड, बट नाउ आई एम टेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स व्हाई आई विल गेट जिंक सल्फेट एक्वस प्लस H2O, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म एंड इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। सो okay, this is the reaction of acid with the metal oxides। And next one is the fourth property, chemical property of acid is reaction of acid with bases। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन इसका आगे भी करेंगे डिटेल में बाद में, पर अभी आपको शॉर्ट फॉर्म सिंपल करवा रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टीज में आ रहा है। एसिड प्लस बेस ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड होता है एसिडिक, बेस होता है बेसिक, पर जो सॉल्ट बनेगा ये हमेशा मोस्टली क्या बनेगा न्यूट्रल बनेगा प्लस वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इट इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये अलग से नाम है, इसलिए इसको डिटेल में बाद में करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। HCl एक्वस या और रिएक्ट विद बेस, वो भी एक्वस, दे विल फॉर्म NaCl एक्वस प्लस वाटर, देयर इज नो नीड टू बैलेंस इट बिकॉज इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, एंड इफ वी विल टेक सल्फ्यूरिक एसिड इन प्लेस ऑफ HCl,
and potassium hydroxide suppose in place of. और याद रखना बेटा इसमें प्लीज़ न्यूट्रलाइजेशन एक्शन में कोशिश करना कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से ही रिएक्ट करवाओ, वीक एसिड या वीक बेस यूज़ ना करो, क्योंकि मैं आगे करवाऊंगा उसमें दिक्कत आएगी। तो न्यूट्रलाइजेशन एक्शन तभी होंगे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट होगा, वैसे एक्चुअली ये होता है, ठीक है। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस ओनली देन द न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा पोटाशियम सल्फेट, क्योंकि के रिएक्ट्स विथ सल्फेट, and then we will get H2O liquid. To balance it, we will write 2 against KOH and 2 against water. Clear? Okay. Now this is these are the properties of acids. 4 properties we did today: reaction with metal carbonates and bicarbonates, reaction with metal oxides, reaction with bases, and reaction with metals. Next, there are some uses for acids which are, I think, given in your textbooks also, and you can also learn it from the internet if you don't have the textbooks. So I will not discuss the uses of acids in this lecture because they are very I think easy to learn from the textbooks. So that's all for the day beta, आज के लिए इतना ही. In the next session we will learn about the properties of bases, physical as well as chemical, and then move further. Right, so that's all for the day. Thank you, bye bye, take care.